ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਮਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ। ਮਣੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਮਣੀ, ਸਰਪ ਮਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਯਸ ਮੈਟਰ। ਪਾਰਸ ਮਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਅਮੀਰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਏ। ਪਾਰਸ ਵਾਲਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਖਮਣੀ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਸ ਮਨੀ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਜ ਮਣੀ, ਗੱਜ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ, ਸਰਪ ਮਣੀ ਵੀ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਝ ਮਿਥਿਆਸ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੁਣੀ, ਗੁਣ ਸੁਣੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਹਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ
के नहीं। जे तुसी भगत जना के मन विश्राम पढ़ोगे गलत हो जाएगा सब कुछ। असी आम तौर ते भगत जना के मन विश्राम ही पढ़ते हैं, के नहीं। जेकर के पढ़िए तो अर्थ होएगा भी भगतां दे मन नूं विश्राम देंदी है। पर सतगुरु कहते ने एड्रैस की है सुखमणी दा, भगत जना कै मन विश्राम, गुरु के प्यारियां भगतां दे मन विच वसदी है। भाव एड्रैस है सतसंगत, सतसंगत विचों मिलदी है सुखमणी। सतगुरु ने आख्या गुरसिखा तेनू हाथियां कोल जाण दी लोड़ नहीं, तेनू सरपां सप्पां कोल मिधण दी लोड़ नहीं, तेनू किसे पारस मणि दी लोड़ नहीं, तेनू किसे चिंता मणि दी लोड़ नहीं। तू केवल सुखमणी वास्ते अरदास करी, तेरे सारे कारज आपे बन जाणगे। जिस दिन सुखमणी तेरे हथ विच आ गई, जिस दिन सुखमणी तेरी बुद्धि विच आ गई, जिस दिन सुखमणी तेरे हिरदे विच टिक गई, तेरे मन विच टिक गई, अंतःकरण विच टिक गई, उस दिन तेरे कारज गुरु कृपा करेगा, सारे रास कर देगा। तो महाराज कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, सुखमणी साहिब ते असी तां करके आख्या साडे सतगुरां दी बाणी है। बाणी दा नाम केवल सुखमणी है। ओ मनी जिस नाल लोक परलोक दे सुख मिलन, ओ मनी जिस नाल जन्म मरण निवृत्ति होवे, ओ मनी जिस नाल भरम वहम हटन, अज्ञानता हटे, संसार दे विषय विकार हटन, ऐसी मनी। तो सतगुरु कृपा करते ने। वैसे मनी दे अर्थ भी बहुत ने। आम तौर ते मनी किसे पत्थर नूं कहा जाता है। अज भी संसार विच ये रवायत है, कई लोग गल विच कीमती पत्थर पा के तांत्रिक विद्या वाले कहते ने तेरे भरम हट जाणगे, तेरे वहम हट जाणगे, तेरा आ हट जाएगा, तेनू आ मिल जाएगा। पर धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज सिख नूं ये बचन नहीं दे रहे। कई लोग तांत्रिक विद्या दे विच ऐसे काबू आ जाते हैं, ऐसे फस जाते हैं, फिर उहदे विचों निकल ही नहीं सकते। और आम तौर ते देखा गया उन्हां दा घर ही तांत्रिक वाले लुट के खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार दुखी है। हर बंदा किसी ना किसी पासों दुखी है, हर जीव किसी ना किसी पासों ऊना है, क्यों कोई ना कोई आसरा भालदा है भी शायद इत्थों मैनू कोई रेमेडी मिलेगी, शायद इत्थों मैनू कोई रेमेडी मिलेगी, शायद इत्थों मेरा कोई भला होएगा, शायद इत्थों मैनू कोई आराम मिलेगा। तो सतगुरु अर्जुन साहब पिता महाराज मैनू अते तुहानू ये बख्शा कर रहे हैं। एक पुराने जमाने दियां मातावां बहुत चंगी तरह जानदियां ने। मनी हुंदी सी रोटी पकांदे सन घिओ वाली। जदों किसी ने सफर ते जाना होवे वो नाल रोटी लैके जांदे सन, जिथे मर्जी भुख लगे खा लैण। उसनूं भी मनी कहंदे सन। अज ते ढाबे बन गए ने, होटल बन गए ने, राह विच बड़ियां जगह बन गईयां ने खलोण दियां। उन्हां ज़मानियां विच सफर विच नहीं सी। सतगुरु ने सुखमनी एक ऐसा सफर दा खाना दिता है, लोक परलोक विच सहायक है। सतगुरु कहंदे परलोक विच भी तेरे काम आएगा, लोक विच भी तू इस नाल तृप्त होएगा, विषय विकारां दे जीवन तो मुक्त हो जाएगा, तेरी जिंदगी विच खेड़ा आ जाएगा, तेरी जिंदगी विच खुशियां आ जाणगियां गुरसिखा जे तू सुखमनी नूं अडॉप्ट कर लैंगा। मनी रोटी नूं भी कहंदे ने, मनी पत्थर नूं भी कहंदे ने। मनी विच सर्प मनी भी है, गज मनी भी है, पारस मनी भी है, चिंता मनी भी है। पर सतगुरु अर्जुन साहब ने सिख नूं सुखमनी बख्शी है। आओ सतगुरु कृपा करन, बख्शिश करन। रिकॉर्डिंग वाले नूं कहना सी माइक तुहाडे अगे रख दिंदे बोलण वास्ते, पढ़न वास्ते। करो कृपा, पढ़ो फिर। नहीं बचिए। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। गौड़ी राग है, सुखमनी बाणी दा नाम है। गौड़ी ते सुखमनी थोड़ा विश्राम दे के पढ़ना है। जे गौड़ी सुखमनी इकट्ठी पढ़ देंगे तो ऐसा लगेगा शायद जिमें गौड़ी सुखमनी ही बाणी दा नाम है। गौड़ी तो बाद पाज है, थोड़ा अल्प विश्राम है। गौड़ी राग है।
ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ। ਮਹਿਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾਵੇਂ ਤੇ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ। ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। शरीर बदले ने, जोत नहीं बदली। जोत कभी भी नहीं बदली, जोत नहीं बदलेगी, वो सारिया में एक है। सब मैं जोत जोत है सोए। तो गुरु साहब कह रहे ने, महाराज ने आरंभ किया गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, शरीर करके पंजवें, ते श्लोक शुरू कर रहे ने। इस पवित्र बाणी अंदर 24 श्लोक ने ते 24 अष्टपदियां ने। ते श्लोक कहंदे किसनू ने? ये गल बहुत रमजदी है, बहुत डूंगी है। बहुत सारे विचार नू, बहुत सारी गल नू घट तो घट लफ्जां विच कलम बंद करन दा नाम श्लोक है। बहुत सारी गल नू, बहुत सारी वार्ता नू, बहुत सारे विचारधारा नू मिनिमम घट तो घट लफ्जां विच गुंद देना, इसनू श्लोक कहंदे ने। तुसीं देखोगे सुखमनी साहिब जी की पवित्र बाणी अंदर सतगुरां दी महान कृपा है, बख्शिश है। श्लोक केवल 2 पंक्तियां दा है, पर अष्टपदी 80 पंक्तियां दी, 80 लाइनां ने। सारी अष्टपदी श्लोक दे आले दुआले घुमेगी। जदों तुसीं चंगी तरह विचार नाल देखोगे, सारी अष्टपदी अपने श्लोक की ही परिक्रमा करेगी। क्यों? जिन्नी भी सारे शास्त्र ने बाणी है, सब एक ओंकार दे आले दुआले परिक्रमा कर रही है। जितनी भी, मैं कई बारी कहना हुन्ना, जिस तरह एक जिमीदार बहुत एक एकड़ विच फसल बीजदा है, एकड़ 4840 स्क्वेयर यार्ड का हुंदा है। जदों फसल पक जाती है तो एक ट्रॉली च आ जाती है, ट्रॉली केवल 10 फुट की होंदी है। तो जदों फसल लैके मंडी वेचण वास्ते जाता है, वो ट्रॉली की फसल के पैसे 4 इंच की जेब में आ जाते हैं। जदों सराफ की दुकान पर जाता है तो 4 इंच की जेब के पैसों की छाप केवल एक उंगल से आ जाती है। तो जदों छाप नूं लैके हीरा खरीदना चाहता है तो उस तो भी छोटा हो जाता है। तो सतगुरु ने बाणी च आख्या है, सूखम मैं जाना अस्थूल। तो सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते ने, कृपालता करते ने। श्लोक सूक्ष्म है, छोटा है, सारी अष्टपदी उसके आले दुआले घूमेगी, उसके विस्तार है, उसके अस्थूल रूप है। तो पातशाह बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर ये विचारधारा है, शब्द भी ने, अष्टपदियां भी ने, श्लोक भी ने, छंद भी ने। तो महाराज श्लोक कह रहे ने। श्लोक तो पहला गुरुदेव ने मंगलाचरण किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एका हमेशा ओंकार तो थोड़ा वखरा पढ़ना है। एक ओंकार,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਠਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਉਤਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਚਲਾਤੀ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪੱਖੇ ਚੋਂ ਚੱਢ ਕੇ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਬ ਜਗ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ RPM ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਬਲਬ ਜਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਦਲਿਆ ਕੋਈ? ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਪੱਖੇ ਵਿੱਚ, ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਕੇਵਲ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਖਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ
सतगुर प्रसाद के परमेश्वर एक है, वो सब दी पैदा करने वाला है, सब दी पालना करने वाला है, सब नू लय करने वाला भी वही है। जिसनू महाराज ने इको बोल च आख्या, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। प्राप्त किवें हुंदा है? पूर्ण गुरु की कृपा द्वारा। पूर्ण गुरु की कृपा तो बगैर अज तक परमेश्वर अंदर हुंदियां होइयां किसी नू लगता नहीं होई। वसदा सब दे अंदर है। अग सारी लकड़ां विच वसदी है, कोई ऐसी लकड़ नहीं जिहदे विच अग नहीं। भावें तुसीं अमेरिका तो लियाओ लकड़, उहदे विच भी अग होएगी, भावें आस्ट्रेलिया तो लियाओ उहदे विच भी अग होएगी, भावें तुसीं रशिया तो लियाओ अग उहदे विच, हिंदुस्तान तो लियाओ अग उहदे विच भी है। पर अग लकड़ दे विच है, प्रगट कदों होई है? जदों बलदी लकड़ दी संगत होई है। बलदी अग्नि दी संगत तो बगैर अज तक लकड़ विच अग हुंदियां प्रगट नहीं हुई। ये नहीं कह सकते अग किरों बाहरों आई है। अग लकड़ दे विच सी, पर प्रगट उदों होई है जदों बलदी हुई लकड़ दी संगत हुई है। ठीक इसे तरह परमेश्वर सारियां दे अंदर है, प्रगट उदों हुंदा है जदों गुरु दी बख्शिश होए किसी दी संगत हुंदी है। गुरु दी संगत हुंदी है, सतसंगत हुंदी है। तो गुरु साहब कह रहे ने, भाई गुरु दी कृपा तो बगैर वो परमेश्वर अंदर हुंदियां होया भी प्रगट नहीं होता। गुरु दी कृपा द्वारा, सतगुर प्रसाद, प्रसाद दे नूं सियारी है, गुरु कृपा द्वारा। ते महाराज कहते ने, आओ सतगुरु जी पहले श्लोक विच की बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे। हाँ जी। आद गुरे नमः। हुण आद दे दद्दे नूं सियारी है। इत्थे जाके मैं कल भी शायद परसों डॉक्टर राणी होरां दे गड्डी विच गुटका पिछे पिया सी, वो पढ़ के वेख्या, उहदे च लिखे ने अर्थ सुखमनी साहब जी दा सी, शायद सुंदर गुटका, पर अपनी अपनी बुद्ध मुताबिक। पर यह आदि शब्द बहुत गहरा है। आम तौर पर जदों की रचना हुई है तो जीव नूं कोई सोझी आई है, बंदे ने 3 काल गिने ने, प्रेजेंट, पास्ट ते फ्यूचर। वर्तमान काल, भविष्य काल ते भूतकाल। पर धन गुरु नानक साहब पातशाह महाराज ने 4 काल गिने ने। जपजी साहब जी के पहले श्लोक विच, आद सच। जदों ये कुदरत कायनात बनी नहीं सी, ये जमीन नहीं सी, ये खंड ब्रह्मंड नहीं सन, ये धरती नहीं सी, आकाश नहीं सी, ये तत्त नहीं सन, ये जीव नहीं सन, उस तो पहला भी कोई चीज है सी। आद मैंने मुढ़ तो ਤਾਂ ਇੱਥੇ सतगुरु जी उस आदि शक्ति की गल गुरु अर्जन पातशाह कर रहे ने। आख्या मैं सब तो पहले गुरुआं दे गुरु परमेश्वर नूं नमस्कार करदा। जे टाइम के लिहाज नाल सोचीए तां धन गुरु नानक साहब पातशाह महाराज 540 साल तो पहला तो नहीं सन संसार ते। ते इस्लाम भी 1450 हजरत मोहम्मद साहब भी नहीं सन है। हजरत ईसा भी 2050 साल तो पहला कोई नहीं सन। महात्मा बुद्ध ते महावीर जिथों जैन धर्म ते बुद्ध धर्म चले ने अज तो 2500 साल पहला कोई नहीं सन। ते 5000 साल पहला वेद भी नहीं सन। ते फिर की कह दीजिए इस तो पहला परमेश्वर भी कोई नहीं सी। फिर तो यही कहना पड़ेगा ना, पर नहीं। सतगुरु ने पातशाह जी ने बाणी में बख्शिश किया है मारू राग में, अरबद नरबद धुंधुकारा। उस तो पहला भी कोई आदि शक्ति है सी जिसनों सुन अवस्था कहते ने, अफुर अवस्था कहते ने। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, महाराज कहते ने मेरी ऐसे परमेश्वर नूं आद गुरे नमः। मुढ़ तो जिहड़ा सारियां दा मुढ़ मूल है,
निर्गुण स्वरूप परमेश्वर नूं मेरी नमस्कार है। गुरु अर्जुन पातशाह कह रहे हैं, जुगाद गुरे नमः। आम तौर पर कई सज्जना ने, विद्वाना ने इस दे अर्थ इस तरह कीते ने भी आदि गुरु उन्होंने गुरु नानक पातशाह नूं आख्या है, पर ऐसा लगता नहीं है। जुगाद उन्होंने गुरु अंगद साहब नूं आख्या है, पर जुगाद दे दद्दे नूं सियारी है, इस करके वो अर्थ नहीं बन सकता। जुगाद दा मतलब हुंदा है जुगां विच जुग आदक। आख्या मेरी उसनूं नमस्कार है जेड़ा देश काल दी होंद तो परे है। समय दी बंदिश विच नहीं बंध सकदा। वो किन्नी वारी त्रेता युग आया, किन्नी वारी द्वापर आया, किन्नी वारी सतयुग आया, किन्नी वारी कलयुग आया, पर वो ते नहीं बदलिया। जुगाद जुग आदक, जेड़ा जुगां विच भी बदलिया नहीं, युग बदल गए ने, जिहदे ते देश काल दा कोई असर नहीं। इत्थों तुसीं हुण हिंदुस्तान चले जाओ, मौसम बदल जाएगा, उत्थे बर्फ पै रही है। कि परमेश्वर भी बदलिया है? अज दी साइंस ये प्रूव कर रही है कि इत्थे दिन हुंदा है ते अमेरिका विच रात हुंदी है, कि फिर रब उत्थे बदल गया? नहीं बदलिया। वो देश काल दी हद तो परे है। उहदे ते किसी मौसम दा कोई असर नहीं, किसी टाइम दा कोई असर नहीं, किसी देश दा कोई असर नहीं, किसी अखर दा कोई असर नहीं, किसी इलम दा कोई असर नहीं। संस्कृत वाला उसका रस लवे उसनों भी उन्ना ही आएगा, गुरमुखी वाला रस ले उसनों भी उन्ना ही आएगा, अंग्रेजी वाला लेगा उसनों भी आएगा। जिस भाषा विच भी उसनों किसी ने याद किया है, जिस नाम विच भी उसनों किसी ने याद किया है, वो अनाम उत्थे ही उहदे ते प्रगट हो गया। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे हैं। ता महाराज ने आख्या ठाकुर जा सिमरा तू ताही, जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाय। तो गुरु साहब कहते जुगाद गुर ए नमः, जेड़ा जुगां विच भी बदलिया नहीं, ऐसे परमेश्वर नूं मेरी नमस्कार है। गुरु अर्जन पातशाह कह रहे हैं, क्योंकि मंगलाचरण शुरू हो रहा है। मंगलाचरण का श्लोक है। तो महाराज अगली पंक्ति विच ये दो, एक पंक्ति विच जेड़े दो आए ने, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, ये परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप नूं नमस्कार है। आओ सतगुरु अगों सरगुण स्वरूप की गल करन लगे ने। चलो, सतगुरे नमः। गुरु नानक पातशाह जी नूं सब तो पहले सतगुरु नूं गुरु अर्जन साहब जी ने नमस्कार की कि मैं गुरु नानक पातशाह के चरणों में नमस्कार करदा, जिथों ये साडी संप्रदा चली है। जदों तुसीं गुरु अर्जन साहब जी के बोल पढ़ोगे तुहानूं इस शब्द में स्पष्ट दिसेगा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सौ दुख इकट्ठा ना पढ़िया करो, गलत हो जाएगा। सौ दुख जदों पढ़िए तो अर्थ बनता भी ओ दुख, पर जदों सौ वखरा कर दोगे गल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सो दुख कैसा पावे, सो मैंने ओ आदमी, ओ जीव। असीं आम तौर पर सौ दुख इकट्ठा ही पढ़ जाने हैं। गुरुदेव ने तो एक एक बचन नूं इन्नी बरीकी नाल गुंदिया है। महाराज कहने जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जे असीं सौ दुख इकट्ठा पढ़िए फिर तो कोई दुख दी होएगी गल हो रही भी ओ दुख, पर महाराज कहते ने ओ जीव दुख किवें पा सकदा जिहदे ते तेरी रहमत दा बख्शिश दा हथ होवे। अगली पंक्ति इस तो होर भी गहरी है, क्योंकि दरम्यान च शब्द आ गया, मैं तुहाडे नाल गुरु दी किरपा नाल साझा कर देवां। अगली पंक्ति की है? हाँ बहुत वधिया। हाँ, मरना चीत की मतलब है इसका? बोल न जाना माया मत माता, मरना चीत ना आवे। की अर्थ इस पंक्ति का? कितनी बारी मेरे ख्याल हजारां बारी सुनिया शब्द है। रागियां नूं आख्या भी सुनाओ जी। हुक्मनामा जो गुरु साहब बख्श देन खुश भी बड़े होने हैं।
गुरु ने सीस दी है। बोल ना जाना माया मद माता। बेटी जो कुछ तुसी कहना चाहते हो तकरीबन 99% अर्थ इस बुद्धि नाल ही कीता जांदा है, पर यह है नहीं है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह कह रहे ने, जो तुहाडी असीस नाल तुच्छ मात्र मैनूं समझ आया है, कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। वो दुख किवें पा सकदा है? बोल ना जाना माया मद माता। सतगुरु कहते फिर वो हंकार दे बोल बोलने ही नहीं जानदा, भुल जाता है। आह बच्चा बहुत डूंगी इहदी फिलासफी है पंक्ति। मद मैंने नशा, अहंकार दा बोल वो बोलदा ही नहीं। बोल ना जाना है माया मद माता, मरना चीत ना आवे। सतगुरु कहते ने मौत दा डर भी उसके अंदरों निकल जाता है। चेते नहीं, भाव डर नहीं रहिंदा। इन्नी तेरी बख्शिश हो जाती उस जीव ते। जब अहंकार विचों निकल गया तो बाकी परमेश्वर ही रह गया ना। जब हम होते तब तू ना है। कितनी गहरी पंक्ति है। तो गुरु अर्जन साहब ने इस शब्द के अंदर ही अखीर ते जाके आख्या, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, जिसने कल युग विच मेरी रख लई है। तो उही गल गुरु अर्जन पातशाह इत्थे कह रहे ने, सतगुरे नमः के गुरु नानक साहब के चरणों में मेरी नमस्कार है, जिथों ये साडी संप्रदा चली है। ठीक है। श्री गुरुदेवे नमः। ते अपने सतगुरुदेव गुरु रामदास साहब पातशाह नूं कह रहे ने गुरु अर्जन साहब कि मैं अपने गुरुदेव रामदास साहब जी का शुकराना करना, उन्हां दी चरनां विच नमस्कार करना, जिन्हां ने मेरे ते अपनी रहमत भर के हथ रख के ये बख्शिशां मैनूं दित्तियां। ठीक हो गया। श्री गुरुदेवे नमः। श्री शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर दो प्रकार नाल है। एक ते श्री शब्द आउंदा सत्कार वास्ते। एक श्री दा मतलब हुंदा है माया, जिन्हां ने माया नूं जित लिया है। श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। गुरु अर्जन पातशाह जी दा सवैया है। श्री पतनाथ, पत मैंने पति। पत शब्द भी बहुत डूंगा है। तुसी जपजी साहिब विच गुरु की कृपा नाल पढ़िया सुनिया होएगा। पत मैंने इज्जत भी, पत मैंने पति भी, पत मैंने पत्ते भी, पत मैंने पत्तर भी, चिट्ठी। पत मैंने संस्कृत दा भांडा। बहुत अर्थ ने पत शब्द दे, पर इत्थे जो सतगुरु कह रहे ने श्री पतनाथ, हे माया दे पति मेरे मालक, कृपा कर मैनू भी संसार तो बचा लै। श्री शब्द माया वास्ते भी गुरु ग्रंथ साहिब च आया है, ते श्री शब्द सत्कार वास्ते भी हुंदा है। तो महाराज कहने श्री गुरुदेव नमः। मैं अपने सतगुरु गुरु रामदास साहब जी के चरणों में नमस्कार करदा वां, जिन्हां ने मेरे ते बख्शिश कीती, रहमत कीती। आप उन्होंने माया नूं जित्या, तिन्ना गुणां नूं जित्या। मैं उन्हां दे चरणों में नमस्कार करदा। श्री गुरुदेव नमः। और हर शिष्य नूं अपने गुरु दा धन्नवाद करना चाहिए पहला, तां उसते बख्शिश गुरु दी कृपा नाल निरंतर होएगी। सिख कदी भी गुरु दा शरीक नहीं बन सकता। इस वास्ते ही तकरीबन धार्मिक विद्या विच वैसे भी लोग, शायद तुहानू पता होना चाहिए, जिहड़े लोग व्यवहारिक गुण भी किधरों लेंदे ने, वो भी सारी जिंदगी उसदे आसानमंद रहिंदे ने। जो इंसान ने जिन्होंने कोई व्यवहारिक गुण भी किसी को मिलिया है, जे किसी को ड्राइविंग भी सीखी है तां भी जिंदगी च कहणगे भी तेरा भला होवे, तू मैनू जा सिखाई।
जे किसी कोलों कोई कारोबार दे इन्स एंड आउट्स सीखे ने तो वह भी धन्नवादी होना चाहिए है। मैनू अज भी याद है, मेरे करनाल शहर विच बहुत सारे हलवाई ऐसे ने जिन्हों ने एक हलवाई कोलों काम सीखिया, उनका नाम खड़क सिंह सी। जदों भी दिवाली आउंदी सी सारे उन्हां दे शिष्य एक एक दस्तार लैके मठियाई लैके उसते घर जाते सन कि तुहाडी मेहरबानी है, असीं तुहाडी बदौलत अपनी जिंदगी की रोजी कमा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ लोग दुनिया ते किसी दे कीते नूं भुल जाते ने, हकीकत है वो फिर कदी ठोकरां ही खांदे ने। ते सिख ने ते हमेशा ही अपने गुरु दे कीते नूं जानना है। तां ही तां गुरु अर्जन साहब पातशाह ने साडे वास्ते खलो के गल कही है, मैं कीता ना जाता हराम खोर। अपने वास्ते कहने की लोड़ सी, वो ते परमेश्वर स्वरूप ने, पुगे हुए ने। गुरु रामदास साहब जी बख्शां दे पात्र ने, अभेद ने, पर केवल ते केवल साडे विच खलो के आख्या, लाग परे तेरे दान से उन्ना चित खसमारे। आख्या मेरे मालिक तू इन्ने सुख दिते, इन्नियां दातां दित्तियां, इन्नियां बख्शां दित्तियां, उन्हां विच ऐसे उलझे आ तेनू भुल गए आ, तां ही ते दुखी हो रहे हैं। अपने स्रोत तो टुट के ही ते दुखी हो रहे हैं। ते करे जन्मां दे टुटे ही लगे होने आ। एक अपॉर्चुनिटी मिली सी मनुखा दे दी कि शायद पिछली गंढ सकीए, पर वो भी निकलती जाती, वो भी समा निकल जा रहा है, बड़ी तेजी नाल निकलता जा रहा है। तुहाडे विचों ते कई बख्शियां बैठियां होणगे, मैं ते अपनी गल करदा। ते गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, ते महाराज कहने श्री गुरुदेव नमः। आख्या मैं गुरु रामदास साहब पातशाह जी के पवित्र चरणों में नमस्कार करदा, जिन्हां ने ये बख्शां कीतियां मेरे ते ये दात बख्शी। हाँ जी, अष्टपदी, 8 पदियां वाली। अष्ट शब्द संस्कृत का है, असी कहने अंग्रेजी विच 8, हिंदी विच 8, संस्कृत विच अष्ट। 8 पदियां वाली, एक एक पदे विच 10 लाइनां ने, ते अष्टपदी 80 लाइनां दी है। गुरुदेव कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। हाँ जी, चलो। पहली ही पंक्ति गुरु की कृपा नाल फर्स्ट परसन है, सैकंड परसन नहीं। आम तौर पर इसका पाठ हो रहा है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पर इस तरह नहीं है। इसका उच्चारण है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। हाँ जी, गुरु अर्जुन साहब पातशाह पहला आप इस लाइन विच खलो के कह रहे ने, परमेश्वर अगे बेनती कर रहे ने पहले पद विच, मालिक मेरे ते कृपा कर, मैं सिमरां ते सुख नूं प्राप्त करां। गल असल च वे भैन जी बहुत वधिया, बिंदी किते नहीं लिखी ते गुरबाणी विच ते पापा लिखिया, तुसी उस नूं फिर पापा किस तरह पढ़दे हो? नहीं, मैं मेरी बेनती सुनो, साइड ते लगा सकते हो अपनी समझ वास्ते। मेरी अर्ज सुनो ना, तुसी सोहले दा पाठ करदे हो, किस तरह करदे हो? करो बेनती के करो बेनती। हाँ जी, बिंदी ला के बगैर बिंदी तो हुंदी नहीं, पर मैं तुहानू पुछना लांदे हो कि नहीं? है जी, मैं तुहानू एक बेनती करदा, एक तुसीं शब्द सुनदे हो, लख खुशियां पातशाहियां, की खुशियां दे उत्ते बिंदी है? नहीं है, नहीं है। मैं तुहानू पुछया तां ही मैं बेनती कीती है। हो सकदा मैं भुलेखे विच होवां, जे तुसीं ना लाओ फिर की बनेगा? खुशियां, खुशियां, खुशियां भी नहीं, क्योंकि शशन भी कोई नहीं ना। ना तुहाडे कोल पोथी है पुत्र? पहले इन तसल्ली करा दईए ना, चक्कर नहीं है। लियाओ, जब पोथी है पहले।
उस तरह ते उहदा उच्चारण भैन जी खुशिया है। पर तुसी जे सतगुरु दी बाणी नूं खोजोगे, इहदे विच फारसी भी है, इहदे विच अरबी भी है, इहदे विच संस्कृत भी है, इहदे विच हिंदी भी है, इहदे विच मराठी भी है, इहदे विच गुजराती भी है, इहदे विच मुल्तानी भी है। ये इन्ना अगम्मी सागर है, अगर लखां वारी कोई जन्म लैके लखां वारी भी पढ़े तां भी इसका अभेद नहीं जा सकता। मैं विनती करदा, इहदे विच अब शब्द है, अब मैंने एट वंस, अब ना भजस भजस कब पाई, ते अब मैंने पानी फारसी, ते संस्कृत अब मैंने हिरदा, ते लफज तो एक ही है। ये शब्द है शट, असी पढ़ने 60, 60 का मतलब होंदा 60, शट का मतलब होंदा मूर्ख। SOT शॉर्ट मूर्ख नूं कहंदे ने अंग्रेजी विच, पर शट शब्द संस्कृत विच भी मूर्ख है। कफ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच है, फारसी भी है ते अंग्रेजी भी है। कफ, इस वास्ते गुरु कृपा करे, बख्शिश करे। इत्थे जदों साह लैना होया ते साह मैंने श्वास, ते शाह शाह मैंने अमीर, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाना कोई। शाह मैंने अमीर, मालिक। तुसी आ तुहाडे थाईलैंड की बड़ी भाषा है शाह जी, है ना। तो सतगुरु गुरु रामदास साहब पातशाह ने परमेश्वर नूं शाह आख्या, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाना कोई। सवेरे थे कवि सज्जन गुरु की महिमा गा सन, महाराज ने शायर क्या कवि नूं, गुरु ग्रंथ साहिब विच, नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा, ते शायर आख्या समुंदर नूं, संस्कृत। इस वास्ते गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, रहमत करे। चंगियाइयां बुरियाइयां कित्थे लगी बिंदी उत्थे पता ना, भरिया मत पापां कै संग, नहीं तो फिर पापा शब्द है उत्थे। मन्ना मुंह चोटा ना खाए, ये रमज है। मैं आप जी नूं बेनती करना, जो बचन तुसी कह रहे हो गुरु की कृपा है, बख्शिश है। वो जिहड़े लोग ये गल कहंदे ने भाई मनी सिंह होरां दे दृष्टांत नाल, मैं तुहाडे चरनां विच बेनती करां, गुरु दे बचनां नूं समझना है। दिल विच कई बोलियां ने, तुसी स्वरूप ते बिंदी ना लगाओ, पर साइड ते लगा के अपनी बुद्धि ते लगाओ जरूर। किवें समझोगे गुरु की गल। फिर एक होर गल है, हुण तुहाडे सामने आ एक ऊड़ा लिखिया है, आ मां अक्षर थले दो बिंदियां पईयां ने, असीं इस नूं महला पंजवां आख्या कि नहीं आख्या। ते फिर जे कहंदे मां दो बिंदियां पंजवां, फिर देन ये बचन है जो मेरी तुच्छ बुद्धि विच तुहाडी असीस नाल आया है। तां सतगुरु कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। वो जदों तुसीं सोहले दी बाणी पढ़दे हो ना, जे तुसीं पढ़ोगे ना करो बेनती, फिर पता है की हुंदा अर्थ, बई तुसीं भी बेनती करो, तुसीं सुनो। पर गुरु अर्जन साहब कहते करो बेनती सुनो मेरे मीता, मैं बेनती करदा है मित्रों सत्संगियों, तुसीं सुनो। ठीक है। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज पहले अष्टपदी दे बंद विच आप उस लाइन विच खलो रहे ने। क्यों? उपदेशक वास्ते खलो गए ने, भी पहला तू आप जप ते तां किसी होर नूं प्रेरणा करी। तू उपदेश दूजे नूं करी जाए ते आप कुछ करे ना। ते खास करके मेरे वर्गे प्रचारक असीं इहो कुछ ही करने हैं भैन जी। असी जेड़े कीर्तनीय रागी पाठी ग्रंथी जिन्ने आ, कोई बख्शिया होया होएगा जेड़ा पहला कमांदा है फिर बोलदा है, नहीं ते चाहने आ साडा बोलिया कोई सुने, असी भावें गुरु दी सुनीए भावें ना सुनीए। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने।
महाराज ने पहला ही शब्द पहले अष्टपदी बंद विच आख्या, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। हे मेरे मालिक मेरे ते कृपा कर। गुरु अर्जन साहब कहते ने मैं तेनू सिमर के सुख प्राप्त करा। फिर की चलो जी, मिटावा। आख्या मेरे मालिक मेरे ते कृपा कर, मैं भी अपने तन दे सारे दुख कलेश मिटा लवां। कल कलेश तन माहे मिटावो। हे सतगुरु मेरे ते तरस कर, कृपा कर, बख्शिश कर। गुरु रामदास साहब पातशाह नूं परमेश्वर नूं संबोधन करके बचन कर रहे हैं। हाँ जी, बेटी सस्से थल्ले औंकड़ है, इस औंकड़ का उच्चारण करना है थोड़ा जा, विश्वंबर। हाँ, जेकर तुसी इसका संधि छेद करोगे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। विश्व अंबर,